Hello students, today I am going to explain a new topic of admission of a partner, and the topic is adjustment of capital, and this is case number 2, in which we have to adjust the capital of old partner on the basis of new partner's capital. And I am explaining this topic through question number 82. In this question, there were two partners X and Y, and the profit sharing ratio between X and Y is 2 is to 1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follow. They admit Z into partnership from 1st April on the following terms. And the terms are Z brings in 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profit. So X brings 40, Z brings 40,000 as his capital and he is admitted for 1/4 share. Now, second, Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partner. As you know, goodwill is always distributed in sacrificing ratio. So, this 15,000 will be distributed in sacrificing ratio. And it is also given half of which is withdrawn by old partner. जितना भी partners को मिलेगा उसका half वो क्या कर लेंगे withdraw कर लेंगे. Then third, investment are valued at 10,000. As you can see, the value of investment in balance sheet is 8,000, but now it is valued at 10,000. So the value of investment is increasing by 2,000. So इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारा कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग. एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. एक्स इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है टेक ओवर कर रहा है. नाउ फोर्थ, टाइपराइटर इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%. Value of typewriter is 5,000 and it is depreciated by 20%, that is 5,000 into 20%, 1,000. और ये हमारा कहाँ जाएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग and the value of fixed asset is also decreasing by 10%. Value of fixed asset is 1,37,000. So 1,37,000 into 10%, that is 13,700. कहाँ जाएगा ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. नाउ एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स हैज़ प्रॉमिस टू पे 1,000. Now, an old customer has now promised to pay 1,000. So in this case, the value of debtor is increasing. As I can say, the value of asset is increasing. तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा credit side of revaluation account. Now, six adjustment by bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing basis. इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सो इन दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. रिवैल्यूएशन अकाउंट. Debit side, typewriter, as we have already discussed all the adjustments. तो टाइपराइटर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिया. फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी, ये हमने डेबिट साइड लिया. एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 2,000, ये क्रेडिट साइड लिया. एंड एन ओल्ड कस्टमर हैज़ प्रॉमिस टू पे 1,000. सो ये हमने किस साइड लिया क्रेडिट साइड लिया. Now we have to calculate loss or profit. As you can see, the total of debit side is 14,700 and the total of credit side is 2,000 plus 1,000, that is 3,000. So the loss is 14,700 minus 3,000, that is 11,700. Now, as you know, revaluation loss is always distributed in old ratio, and old ratio is 2 is to 1. So for X it is 7,800 and for Y it is 3,900. Now we will make partners capital account. So this is your partners capital account. By balance brought down. सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में जितना भी उनका कैपिटल दिया होगा, एक्स की कैपिटल है 75,000, वाई की कैपिटल है 62,000. And it is mentioned in the question that Z brings 40,000 for his capital. So by bank capital 40,000. In the balance sheet, reserve fund is also given.
18,000, and whenever any reserves or profit given in the balance sheet, it is always distributed in old ratio, and the old ratio is 2 is to 1. So 18,000 reserve fund is distributed in 2 is to 1 ratio. So for X it is 12,000, for Y it is 6,000. Now, premium for goodwill. Z brings 15,000 premium for goodwill, and it is distributed in sacrificing ratio. In this question, sacrificing ratio is 2 is to 1. So, premium for goodwill, for X it is 10,000, and for Y it is 5,000. And it is also clearly mentioned in the question that half of the premium for goodwill is withdrawn by the partner. So half of 10,000 is withdrawn by X, and half of 5,000, that is 2,500, is withdrawn by Y. So here 2 bank 5,000, 2,500. Now रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, उसमें हमारा लॉस आया था. उस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डेबिट साइड. सो हेयर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस 7,800 एंड 3,900. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हुई थी, और 10,000 की वैल्यू पर एक्स ने उसको क्या किया था? टुक ओवर किया था. सो इट विल कम दिस साइड, डेबिट साइड, टू इन्वेस्टमेंट 10,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर balances. So 75,000 plus 12,000 plus 10,000, it is 97,000, minus 5,000 minus 7,800 minus 10,000, it is 74,200. In the same way, for Y it is 66,600, for Z it is 40,000. Now we have to adjust the capital of old partner on the basis of new partner's capital. So here I have written these steps for you to make it clear. कैसे हम एडजस्ट कैपिटल को एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज और हर शेयर. तो जेड न्यू पार्टनर है, वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? न्यू पार्टनर 40,000, एंड हिज शेयर इज़ 1/4. तो हमने क्या किया? उसके शेयर को क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, 4/1. सो द न्यू कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 1,60,000. और रीज़न क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है वो कितनी कैपिटल लेकर आता है? दैट इज़ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू हिज शेयर. तो अगर हम उसके शेयर को रिवर्स करेंगे तो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सेकंड स्टेप, डिवाइड कैपिटल इन न्यू रेशियो. हमने कैपिटल को क्या करना है? जो टोटल कैपिटल हमने निकाली है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड द न्यू रेशियो इज़ 2:1:1. 1,60,000 को 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. फॉर एक्स इट इज़ 1,60,000 इंटू 2/4, दैट इज़ 80,000. एंड फॉर वाई इट इज़ 1,60,000 इंटू 1/4, दैट इज़ 40,000. एंड फॉर जेड इट इज़ 1,60,000 इंटू 1/4, दैट इज़ 40,000. Now step 3, any surplus or deficiency is transferred to bank account, cash account or current account. Whatever it is given in the question, we have to do like that only. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? जो भी हमारा डिफरेंस होगा हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या करेंट अकाउंट में कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दैट वी हैव टू ट्रांसफ़र इट टू बैंक अकाउंट. ठीक है. और रीज़न क्या है? यहाँ पर देखो, हमने एक्स की कैपिटल को कैलकुलेट करा, वाई की कैपिटल को, जेड की कैपिटल को किया कैलकुलेट. सो द बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल इज़ 74,200. बट अब हमने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट किया है, और जेड की कैपिटल, आप एक्स की कैपिटल देख सकते हो कितना है यहाँ पर, 80,000. इट मीन्स जेड की, एक्स की कैपिटल है 74,200, बट इट मस्ट बी 80,000. तो एक्स क्या करेगा? और कितना अमाउंट फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा? 5,800. ठीक है. तो जो भी डेफिशिएंसी होगी या सरप्लस होगा हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? बैंक अकाउंट. सो हेयर बाय बैंक इट इज़ 5,800, दैट इज़ 80,000 माइनस 74,200. नाउ फॉर जेड एक्स, now for y, the balance of y's capital is 66,600,
बट हमने क्या कैलकुलेट किया है, इसकी कैपिटल कितना होना चाहिए, 40,000. सो वॉट ही विल डू, he will withdraw 26,600. कैपिटल कितनी है, 66,600, बट इट मस्ट बी 40,000. तो ये क्या करेगा, विदड्रॉ कर लेगा टू बैंक 26,600. और जेड की कैपिटल सेम होगी 40,000 एंड 40,000. So these are the steps. First we have to calculate total capital of the firm, then we have to divide it in new ratio, then we have to then we have to see there is a surplus or deficiency, and we have to transfer it to bank account, cash account or current account, whatever it is given in the question. Now last, balance sheet. सो बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 25,000. हियर वी हैव टू राइट देयर कैपिटल 80,000 फॉर एक्स, 40,000 फॉर वाई एंड जेड 40,000, टोटल 1,60,000. सो द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 1,85,000. नाउ फॉर कैश एट बैंक द वैल्यू इज़ 31,700. बट ये कैसे आया है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है. कैश एट बैंक बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी बैलेंस कितना गिवन था, इट वॉज 5,000 एंड सेट ब्रिंग्स 40,000 फॉर कैपिटल and 15,000 for premium for goodwill, half of which is withdrawn by partner. So I have directly written it as 7,500. That is half of 15,000 because half of the goodwill is withdrawn by partners. Now प्लस 5,800. प्लस 1,500 क्यों किया है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा था एक्स ने कितना इंट्रोड्यूस किया है, 5,800, बट वाई विदड्रॉज 26,600. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको माइनस किया है. 5,800 प्लस minus 26,600. So the balance of cash at bank is 31,700. यहाँ पर हमने लिख दिया है. डेटर्स बैलेंस शीट में 15,000 थे, बट एन ओल्ड कस्टमर हैज़ प्रॉमिस टू पे 1,000, सो इट इज़ 16,000 and the value of stock is 10,000. Typewriter 4,000 and fixed asset it is 1,23,300. हमने इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखा है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टुक ओवर बाय एक्स, तो वो हमारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा. एंड द टोटल साइड ऑफ एसेट इज़ ऑल्सो 1,85,000.